গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে আৰু আমি ব্ৰহ্মপুৱাতে ওলাই আহিছোঁ আজি বহুত দিনৰ পিছত। এতিয়া আমি উৰিয়াগাঁও পালোহি, তেল ভৰাব লাগিব, আন্ধাৰ হৈয়ে আছে। এতিয়া আমি বেছি নভৰাওঁ, আগত গৈ ভৰামগৈ। এইটো উৰিয়াগাঁৱৰ তেল দিব আৰু নগাঁৱত এইটো 24 ঘণ্টা থাকে, কাৰণ এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে আৰু আমি তেল পাই গৈছোঁ ইয়াতে। আমি উৰিয়াগাঁও পাৰ হৈ পেলাই আহিছোঁ, পুৰণি গুদাম পাৰ হৈছোঁ এতিয়া। আৰু ৰাতি বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাই বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ। এই ফিল্ডটো বহুত বেলেগ হয়, ছানৰাইজটো আমি ৰাস্তাতে পাই যাম আৰু আমি সূৰ্য উঠা দেশলৈকে গৈ আছোঁ। ৰঙা চিঙা পৰি পেলাই ওলাইছে ৰাতিপুৱা প্ৰথম কিৰণটো, যেন সূৰ্যটো ওলোৱাৰ আগত বহুত লাজ কৰিছে, লাজত ৰঙা পৰি গৈছে আৰু আমি এতিয়া মিছা পাৰ হৈ আহিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ এই নাজাৰাটো চবতকে বেলেগ হৈ থাকে আৰু মানে বহুত ফ্ৰেছ মাইণ্ডেড মানে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ৰাতিপুৱাই গৈছে আৰু কিমান কুঁৱলী আপোনালোকে দেখিছে। এয়া বহুত কুঁৱলীৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ। এই পৰিৱেশটোৰ কাৰণেই আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই আহিছোঁ। এই পৰিৱেশটো বহুত দিন আমি লোৱা নাই। এয়া এতিয়া তেজপুৰ পামহি, পোহৰ হৈ গৈছে ভালকে আৰু বহুত কুঁৱলী আপোনালোকে দেখি আছে। এয়া আহি পাই গ'লোহি আমি কলীয়া ভোমোৰা দলং। এয়া বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অলপ টাইমৰ পিছত ব্লগটো হিন্দী কৰি দিম, কাৰণ মই কেইদিনমানৰ আগত ভাবিছিলোঁ যে অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱা ব্লগবিলাক মই হিন্দীত বনাম। তেতিয়া ভাল লাগিব, নতুনকৈ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাম। এতিয়া এই তেজপুৰলৈ অহা ৰাস্তাটো বেলেগ মজা হৈ গ'ল। আগতে এটা সৰু ৰাস্তা আছিল, কিন্তু এতিয়া মস্ত এটা ৰাস্তা হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তেজপুৰ আহি পাবলৈ বহুত কম সময় লাগে। দৰ্শক মণ্ডলী, আহি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আন্ধাৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ আমি। এতিয়া আহি পোহৰ হৈছেহি। পোহৰ মানে ৰ'দ ওলাই গৈছে। দূৰণি পাহাৰখন মই জুম কৰি দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া দেখা পাই আছে। আৰু বালিপাৰা পামহি এতিয়া। আমি এতিয়া বালিপাৰা পাইছোঁহি। Continue straight past Balipura traffic point onto Balipura, Bhalukpur Road, Balipura Charidwar Road. এয়া বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰ ৰাস্তাত আমি এতিয়া সোমাইছোঁ। Continue for 81 kilometers. অলপ টাইমৰ পিছত সেই নামেৰি পাৰ হ'ম। নামেৰিৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া বালিপাৰা সোমাইছোঁহি আৰু ইয়াৰ পিছত বালিপাৰাৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব মানে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন। আমি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেদি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, মই অকলে আহি থকা নাই, গম পাইছে। মোৰ লগত আছে বৰা। এয়া বৰা এতিয়া পূৰা গাড়ী চলাই আছে। তাৰপিছতে আহিছে ৰণী বি, আমাৰ গেমাৰ, আৰু আমাৰ ব্ৰ একদম মিচিকে আহি দি আছে। আমি 4টা আহি আছোঁ। আমি প্ৰায় 2 বছৰৰ পিছত আমি এইটো ট্ৰিপ আকৌ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাগে চাইছে, জুকু ভেলীলৈ গৈছিলোঁ আমি প্ৰথম 3 বছৰমানৰ আগত একেলগে। তাৰপিছত জুকু ভেলীৰ পিছত আকৌ টাৱাঙলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছোঁ। ঘূৰাই দিলেই হ'ল আৰু মেইন নামেৰিলে এইফালে যায় বোলা ন? ৰিভাৰ ৰাফটিং সেইফালে কৰে নেকি? সেইফালে কৰা হ'ব না। মই অহা নাই ইয়াত, নামেৰিত আজিলৈকে ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰা নাই। তই কৰিছনে? নাই কৰা, মনটো আছে। নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগাৰৰ ডেঞ্চিটি ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ বেছি হয়। চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, মানে দুয়োফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, আৰু তাৰ মাজতে সূৰ্যৰ প্ৰথম কিৰণটো পৰিছেহি। কি মনোমোহা পৰিৱেশ। হাতী চাতি নোলালেই হ'ল আৰু। ভাবিছোঁ এই জংঘলখন মুকলি হ'লেই অকণমান ৰখিমগৈ, কাৰণ আমি ভালুকপুং পামহিয়ে আৰু এতিয়ালৈকে 8টা বজাই নাই ৰাতিপুৱা। এই ৰাস্তাটো দৰ্শক মণ্ডলী বনাইছে আৰু মেইনটেইন কৰি আছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে, আৰু এইটো একে চি লেভেলৰ 1-2 পৰা আৰম্ভ কৰি একে 5 কিলোমিটাৰমান ওপৰলৈকে এই ৰাস্তাটো আছে। মানে চি লেভেলৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান ওপৰলৈকে। চেলাটপ হ'ল 4 কিলোমিটাৰ ওপৰত আৰু বুমলা পাছ হ'ল
প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ওপৰত তালৈকে এই ৰাস্তাটোৱে আছেগে। পাই গ'লো সেই দৰ্শক মণ্ডলী ভালুকপুং, আৰু এতিয়া আমি অসমৰ পৰা অৰুণাচল যাম। দৰ্শক মণ্ডলী, এতিয়া আমি ILP বনাব আহিছোঁ, মানে পাছ বনাব আহিছোঁ। ILP বুলি কয় আৰু কাৰণটো হ'ল অৰুণাচল সোমাবলৈ এখন পাছ লাগিব। দৰ্শক মণ্ডলী, কিবা আছে আজি ইয়াতে, মানে পূজা আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ দোকান চোকান চব বন্ধ। চাহো পাবলৈ নাই, ৰুটিও নাপালোঁ, একো নাই, অলপ আগত गए पहले खावा लेबो। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट के बाद हम लोगों का ILP हो गया, और ILP बनाकर हम लोग गाड़ी में बैठूंगा। वहाँ के बाद यहाँ पे आज कुछ पूजा है, इसलिए दुकान बंद है, और हम लोग बाजार शजार थोड़ी आगे में करूँगा, और खाना साना पकाऊँगा, खाने के बाद जाऊँगा। वेलकम टू अरुणाचल। हम लोग सुबह सुबह ही निकले थे घर से, और हम लोग घुस गया अरुणाचल प्रदेश में, और हम लोग जा रहा हूँ अभी तवांग के लिए। ऑल सेट। अभी हम लोग हिंदी में बात करूंगा, अभी हम लोग असम पे नहीं है ना, हिंदी में बात करना। हाँ, अभी हिंदी में बात करना पड़ेगा। ठीक है। अभी सुबह 7:30 हो गया। तेल भरालो, टिपी तेल भराई পেলাই আগলৈ যাম। মাংস বিচাৰি আছোঁ, মাংস কিনিব লাগিব। আৰু ইয়াতে তেলৰ দামটো বহুত কম, মাত্ৰ 92 আপোনালোকক 92.47 আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। বহুত কম দাম অৰুণাচলত তেলৰ। नज़ारा देखो सुबह सुबह, कितना औसम है, और पूरा ग्रीन है पहाड़, कितना औसम प्लेस। रास्ते का बीच में ही है ये सुंदर वाटरफॉल, और यहाँ पे हम लोग 1-2 मिनट रुका और फिर से हम लोग आगे चला। घर से हम लोग अभी ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर क्रॉस किया, और हम लोग अभी अरुणाचल हिल्स में है, और नज़ारा बहुत सुंदर है। हम लोग अभी पहुंच गया हूँ सेसा, और ये क्रॉस कर रहा हूँ टेंगा रिवर। और इंटरेस्टिंग केस ये है कि ये नदी जाके असम पे जियाभोरी रिवर नाम लिया है, और यहाँ पे ये टेंगा रिवर नाम से ही जानता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रो ही ये रास्ता मेंटेन कर रहा है, और उसका अंदर ही ये रास्ता आता है। 2014 से पहले ये रास्ता बहुत छोटा था, और रोड भी बहुत डेंजरस था। अभी तो दो टनल हो गया है, एक निचिकू टनल और एक सेला टनल। तो रास्ता भी बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसलिए तवांग इतना भी एडवेंचर नहीं है। हाँ, लेकिन रास्ता तो वन ऑफ द डेंजरस रूट इन इंडिया। हम लोग पहुंच गए हूँ टेंगा वैली। ये लोकेशन सी लेवल से 6500 फीट ऊंचा है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऊपर आ गया। अरुणाचल प्रदेश का पहले का नाम था नेफा, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और ये 20 फरवरी 1987 में एज ए स्टेट डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश असम का ही हिस्सा था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रिकॉर्ड भी ये अरुणाचल का नाम में ही है। अरुणाचल का पॉपुलेशन ओनली 13 लाख है। इंडिया का पहला सनराइज अरुणाचल में ही होता है, और अरुणाचल प्रदेश का मीनिंग ही है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हम लोग पहुंच गया हूँ निचुकू टनल, और ये टनल 500 मीटर लंबा है, और इसके लिए 6 किलोमीटर रिड्यूस हो गया है तवांग के लिए। टनल क्रॉस करके ही हम लोग रुका, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा 2 फ्रूट्स का दुकान है। एप्पल ले लिया, ये अरुणाचल का एप्पल है, बोमजिला का है ना। ये टनल, अभी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसलिए एप्पल ले लिया। थोड़ा भूख लग रहा है, और हम लोग कुछ भी मतलब मार्केट नहीं मिला है।
आपेल खा के फिर से हम लोग चल पड़ा क्योंकि डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर है। हम लोग तो आज नहीं पहुंचूंगा, शायद हम लोग आज रामा कैंप पे ही रुक जाऊंगा क्योंकि पहाड़ में ज्यादा स्पीड नहीं चला सकता है। अच्छा लोकेशन है ये मोनेस्ट्री का लोकेशन। क्या पीक तो बहुत अच्छा है। शायद रोड थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे। क्या ऑसम लोकेशन है। थोड़ी देर के बाद हम लोग हिल क्रॉस करके माउंटेन में पहुंच जाऊंगा जो हिमालयन रेंज है। हम लोग घर से सुबह ही निकला था और सोचा था भालुकपुंग में कुछ ब्रेकफास्ट करूंगा, लेकिन एक भी दुकान खुला नहीं था, इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया। और अभी 11 बज गया, इसलिए सोच रहा हूँ हम लोग रुकेंगे एक साइड व्यू पे, तो वहाँ पे हम लोग खाना पकाऊंगा। खाना पीना खा के हम लोग आगे जाऊंगा। और हम लोग आके फाइनली टेंगा रिवर का बीच में ही एक जगह मिल गया और बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे कैंप करूंगा थोड़ी देर टाइम के लिए और यहाँ पे खाना पकाऊंगा। और यहाँ में तैन करने का एक ही फायदा है, यहाँ पे पानी अवेलेबल है और हम लोग ये पानी यूज कर सकते हैं। हम लोग सुबह से ही आ रहा था नौगांव से और हम लोग अभी पहुंच गया हूँ टेंगा वैली। और ये अरुणाचल का ये वैली बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, दुकान बंद था, इसलिए सोचा टेंगा वैली का पास में ही कैंप करूंगा और वहाँ पे खाना पकाऊंगा। खाना खाकर ही हम लोग जाऊंगा फिर से तवांग के लिए। हम लोग खाना बनाने का सब चीज पैकिंग करके गाड़ी में ही ले आया था। यहाँ पे सिर्फ चिकन लिया और हम लोग अभी वो अनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, इसलिए हम लोग कैंप भी खोल के रख लिया। वो कैंप में बहुत हवा रेजिस्ट करेगा, नहीं तो हमारा खाना पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले आलू प्याज वो काट के पहले रख लिया, चावल भी निकल लिया क्योंकि हम लोगों का पानी नदी में है और हम लोग ये धोने के लिए नदी में जाना पड़ेगा। टेंगा पार হৈ পেলাই ৰখিলো। এতিয়া আমাৰ ভাতৰ আয়োজন আৰু বৰাহঁতে ভাতৰ আয়োজন কৰিছে। কেম্প কৰি হৈ গ'ল। বহুত চালিয়া পৰিৱেশ সেইটো। বৰাহঁতে পুৰা বাচন চাচন মানে কি চাউল তাউল ধুই আছে। ऐसे ही मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ, वो मेरा 3 फ्रेंड ही काम करेगा, मैं सिर्फ वीडियो कर रहा हूँ। যিহেতু পানী আমাৰ হাতত কম আছে, আমি ডাইৰেক্ট পিকনিক এটাহে হৈ গৈছে। নদীৰ পানীতে আমি চাউল তাউল ধোৱা হৈছে আজি। কি ধুনীয়া পানী। हम लोग अभी 6500 सी लेवल से ऊपर हूँ, लगभग 2 किलोमीटर है। और नज़ारा देखो, बचपन में एक आर्ट करता था, वहाँ पे एक पहाड़ था, वहाँ पे एक नदी था और एक वैली था, एकदम सेम टू सेम प्लेस है ये। हम लोगों का खाना का प्रिपरेशन पूरा चल रहा है ये टेंगा वैली में। लगभग 12 बज गया है और सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाया ना, इसलिए हम लोग पका रहा हूँ अभी टेंगा वैली का पास। ये टूर हम लोगों का फर्स्ट है और चिकन देखो, ये अभी पकाऊंगा। चिकन भी अभी धोने के लिए रेडी हो रहा है। टेंगा रिवर का पास में ही है ये टेंगा वैली और ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग तो कुछ टाइम के लिए रोड साइड में ही रुका हूँ, लेकिन ये वैली बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है।
मैंने जितना हो सके शूट करके आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, अगर बुरा लग रहा है तो भी कमेंट में बता देना। मेरा ड्रोन शॉट लेके हो गया, और उस टाइम में ही बड़ा ने पूरा खाना पका दिया। और अभी हम चार ने लाइफ में पहली बार टेंगा रिवर का पास में खाना खाऊंगा, और खाना खाने का बाद हम लोग फिर से निकल जाऊंगा। खुद खाना पकाने का बहुत फायदा है। पहला फायदा ये है कि खाना में क्या चीज बन रहा है खुद को मालूम है, कितना पुराना है, कितना फ्रेश है, हमको मालूम पड़ रहा है। और इस खाने से पेट खराब नहीं होगा, और जर्नी में पेट खराब होगा तो पूरा जर्नी खराब। और हम लोग लास्ट टाइम के लिए नदी का बीच में आ रहा हूँ। उसके बाद टाइम तो हो गया, अभी 2 बजने वाला है। उसके बाद हम लोग फिर से ऊपर में जाऊंगा। बोमडिला क्रॉस करना है, उसके बाद दिरांग क्रॉस करना है, उसके बाद ही हम लोग रुकूंगा। টেনশ্যন কৰি পেলাই আমি ওলাইছোঁ। টেনশ্যন সামৰি পেলাই ভাত পানী খোৱা হ'ল। আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাত আছিলোঁ। আমি আহি পেলাই ভাত খালোঁহি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি আছিলোঁ। এতিয়া আমি ৰামা কেম্পলৈ যাম। ইচ্ছা কৰা হ'লে টাৱাং পাই যাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু লাহে লাহে আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, আৰু বিন্দাছ আহিছোঁ আৰু খানা পিনা বনাই। ব'লক এতিয়া বৰাই হৰ্ণ মাৰি আছে, গাড়ীটো থোংগে। তো বাই বাই रूपा। दोपहर 2 बज गया और हम लोग टेंगा वैली में आकर खाना पकाकर हम लोग लंच किया। उसके बाद हम लोग अभी निकल रहा हूँ, और ज्यादा दूर नहीं है हम लोगों का डेस्टिनेशन के लिए। ये पहले का रास्ता था, अभी ये नया रास्ता है। वो रास्ता 2014 का बाद मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहले वो छोटा रास्ता था। उससे पहले ज्यादा टूरिस्ट अरुणाचल में नहीं आता था, लेकिन फेमस था तवांग। इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए बुमला पास फेमस था। लेकिन 2-3 साल से ही टूरिस्ट का मतलब गैदरिंग ज्यादा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और इसलिए जर्नी बहुत एडवेंचर होता था 2014 का पहले। और दोस्तों हम लोग अभी अरुणाचल का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और थोड़ी ही देर बाद में हम लोग पहुंच जाऊंगा बोमडिला बाईपास। और बोमडिला हम लोग नहीं घुसूंगा इस टाइम, बोमडिला बाईपास होके जाऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी रामा कैंप पहुंचना है। सुबह 4 बजे ही निकला था। हम लोग आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में देखा था ना, इसलिए टायर्ड फील हो रहा है। आप लोग ये जान के शौक होगा, ऑलमोस्ट 7500 स्क्वायर किलोमीटर का ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग है, और यहाँ का पॉपुलेशन है सिर्फ ऑलमोस्ट 84,000। डेंसिटी देखो कितना कम है अरुणाचल का पॉपुलेशन। सेला पास मतलब सेला टॉप और सेला लेक, ये सब मतलब सेला पास का जो सेला टनल, वो सब कुछ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ऑलमोस्ट 13,700 फीट अबव सी लेवल है ये सेला। वहाँ पे बहुत खूबसूरत नजारा है सेला पास में। अभी हम लोग बोमडिला बाईपास करके जाऊंगा, और अभी हम लोग 2415 मीटर अबव सी लेवल मतलब 7923 फीट अबव सी लेवल हम लोग ड्राइव कर रहा हूँ। और मेघालय का चेरापुंजी जो है ना, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है ये बोमडिला।
बोमदिला अभी बाईपास करके पहुंचने वाला हूँ दिरांग। दिरांग एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, लेकिन मोनेस्ट्री में हम लोग नहीं घुसूंगा। पहले मैं आया था दिरांग मोनेस्ट्री, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप लोग देख सकते हो। बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है। थोड़ी देर आने के बाद बोमदिला क्रॉस करके हम लोग पूरा थोड़ा साइट सीन करने के लिए रास्ता में ही रुक गया। बहुत औसम लोकेशन है यहाँ पे, और अरुणाचल तो पूरा औसम ही है ना। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 घंटे के अंदर हम लोग रमा कैंप पहुँच जाऊँगा, इसलिए थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत 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 सिनेमेटिक मतलब व्यू है यहाँ पे। और ये हम लोग पहुंच गया हूँ दिरांग। बहुत छोटा टाउन है लेकिन बहुत खूबसूरत है। कामेंग रिवर का पास ही है ये दिरांग टाउन। और दिरांग बोमदिला से बहुत नीचे है, मतलब नीचे है। दिरांग 4900 फीट अबव सी लेवल है, मतलब 1560 मीटर। लेकिन ये भी चेरापूंजी से लगभग 150-100 मीटर ऊपर है। और लगभग हम लोग सुबह से ही ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी शाम होने वाला है। लगभग 10 आवर्स हो गया है, और थोड़ी देर का बाद ही हम लोग पहुँच जाऊंगा हम लोगों का फर्स्ट डे का डेस्टिनेशन। हम लोग पहुंचने वाला हूँ रामा कैंप। थोड़ी ही दूर में रामा कैंप है। बीच में थोड़ा रुक के आया हूँ, लेकिन ऑल टोटल घर से निकलने का टाइम से अभी तक 12 आवर्स हो गया है। और मेरा टांग हिंदी मतलब इतना अच्छा नहीं है, सो बुरा मत मानिए। हम लोग अभी पहुंच गया हूँ रामा कैंप, और यहाँ पे नज़ारा बहुत औसम है। और ये जो पिक देख रहा है वो अभी क्लाउडी हो गया। वहाँ पे सेला पास है, सेला टॉप है। हम लोग कल जाऊँगा। और डीएल होम स्टे पहले बहुत छोटा था, तो 2nd फ्लोर ही था। अभी टेरेस में हम लोगों का रूम मिला है, और कितना बढ़िया सा मतलब बैल्कनी है यहाँ पे, और ठंडा बहुत है यहाँ पे। और ये देखो टेरेस से कितना सुंदर नज़ारा है अरुणाचल। ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट सनराइज होता है, और यहाँ पे फर्स्ट सनसेट भी होता है। बहुत अच्छा टाइम में पहुँच गया हूँ। वेदर भी क्लाउडी है, स्नोफॉल नहीं हुआ है, नहीं तो वो पहाड़ कंप्लीट स्नो मतलब बर्फ देखता है। और रात होने वाला है, हम लोग आज यहाँ पे ही रुकूंगा, पार्टी सार्टी करूंगा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी दे देना। ये पूरा फ्री है, तो कौन जो समी। गुड मर्निंग एभरिवान। কালি ৰামা কেম্পত থাকিলোঁ, খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ কালি। আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে ব্লগত। আৰু খোৱাৰ পৰা উঠি মেলি চাহ তাহ খালোঁ, কফি খালোঁ, খাই পেলাই বহিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ, এতিয়া আগফালেও পাহাৰ, পিছফালেও পাহাৰ, চবতে পাহাৰেই পাহাৰ। এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ পেলাই যাম টাৱাঙলৈ ইয়াৰ পৰা। ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠিলোঁ, 4টামান বজাতে উঠি পেলাই আমি ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ, খোজকাঢ়িবলৈ गलूँ। अभी गुड मॉर्निंग अरुणाचल। और अभी निकल रहा हूँ सेला टॉप के लिए, उसके बाद तवांग जाऊंगा। रामा कैंप में रुका था कल रात, और ये है कल का हमारा होम स्टे। मैं रामा कैंप में एक ही होम स्टे में रहता हूँ, ये है डीएल होम स्टे, और व्यू भी बहुत सुंदर है। और लामा दीदी देख रहा है, सोच रहा है शायद कितना बार आएगा वो। बाय बाय। अभी निकल रहा हूँ सेला टॉप के लिए, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ सेला पास। एंड दोस्तों, आप लोगों को तो कल का रात का स्टोरी बताया ही नहीं है। कल हम लोग शाम होने से पहले ही आ गया, और आके हम लोग पूरा कैंप फायर करा। लामा दीदी ने पूरा हम लोगों को फैसिलिटी दिया डीएल होम स्टे में।
क्योंकि मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ उसका। ऐसे ही वो बहुत फैसिलिटी देता है और बहुत इसलिए बहुत डीएल होमस्टे मुझे अच्छा लगता है। लाभा दीदी ने लोकल डिश का बारे में बोल रहा था, वो बना के हम लोगों को खिलाएगा आज रात, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हम लोग पूरा सामान खरीद के ही लेके आया था असम से ही, खाना का सामान। आप लोग तो पिछले ब्लॉग में देखा ही था। तो दीदी को बोल दिया हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा दीदी के हाथ से हम लोग खाना खाऊंगा। चेरी ब्लॉसम और नजारा देखो सुबह सुबह कितना सुंदर है। हम लोग अभी बहुत ऊपर क्लाइम करूंगा, 13,700 फीट ऊपर तक हम लोग जाऊंगा, उसके बाद नीचे जाऊंगा। 13,700 फीट में सेला पास है, सेला लेक है, शायद यहाँ पे बहुत ठंडा है। और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ट्रेवल कर रहा हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है। आप लोग देख रहा है रास्ते का पास कोई घर शहर नहीं है, आदमी भी बहुत रेयर ही मिलता है यहाँ पे। दोस्तों हम लोग अभी आ रहा हूँ रामा कैंप से सेला टॉप के लिए, सेला पास के लिए। ये बहुत हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है और इसका ऊंचाई है 13,700 फीट, लगभग 4,200 मीटर। मतलब हम लोग सी लेवल से 4 किलोमीटर ऊपर चलूंगा। ये बोरा ने ड्राइव किया है, रोनी भी पीछे में है और ब्रो भी पीछे में है और हम लोग जा रहा हूँ हमारी अल्टो में। आप लोग क्या सेला पास का हिस्ट्री जानते हो? सेला एक लड़की थी और वो जो इंडियन सोल्जर है 1962 में जसवंत सिंह रावत, उसका साथ वो लड़ाई करती थी और वो चाइनीज आर्मी को 1962 में जसवंत सिंह के साथ 72 आवर्स तक फाइटिंग किया था सेला पास में। और उसके बाद जसवंत सिंह भी वीरगति प्राप्त हो गया और सेला को भी मतलब वीरगति प्राप्त हो गया था। जसवंत सिंह को परमवीर चक्र मिला था, लेकिन सेला तो आर्मी का आदमी नहीं था ना, इसलिए उसका मेमोरीज में ये टॉप, ये लेक, ये टनल सब कुछ सेला के नाम में ही रख लिया। अभी 10 बज गया, भूख लग रहा है बहुत, इसलिए हम लोग रुक गया। अभी खाना पकाऊंगा, मैगी पकाऊंगा। चला तब अभी तक नहीं पहुंच रहा हूँ और थोड़ा टाइम है। और देखो कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे और कितना सुंदर लोकेशन पे हम लोग मैगी पकाया। आप लोगों को नहीं खिलाऊंगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग खाऊंगा क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर जाना है। अभी तवांग तक जाना है, सेला टॉप भी अभी तक क्रॉस नहीं किया हूँ, वहाँ पे रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम। और ये अलग सा एक्सपीरियंस है। होटल में तो खाना मिल जाता, मैगी ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए लेगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना खुद खाना पकाने का रोड पे, अलग फीलिंग्स है ये। और रास्ते में खाना बनाने का फायदा ये है कि मुझे बहुत कुछ स्वाद मिल जाता है। खाना तो सब कुछ बड़ा नहीं पकाया है और मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खाना खा के मतलब मैगी खा के और बीच में ही एक छोटा वाटरफॉल है। पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों का कम हो गया। बर्तन यहाँ पे ही साफ कर लिया सब कुछ।
हाय एवरीवन, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग मैगी पकाया सेलाटॉप क्रॉस करने से पहले। अभी बर्तन धो के रोनी भी आ रहा है और फिर से हम लोग आगे निकल जाऊंगा। मेरा दोस्त लोग पीछे आ रहा है, मैं भी वहाँ पे है। मैं सोच लिया थोड़ा दूर वॉक करके चला जाता हूँ। Nice line. Our flag doesn't fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Border Road Organization. और दोस्तों BRO ही ये रोड मेंटेन कर रहा है और 2014 से पहले ये रोड बहुत खराब था, बहुत डेंजरस था। अभी तो रोड का सिचुएशन बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग बिंदास आ रहा हूँ। Now we are climbing सेलाटॉप और यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है और मतलब हम लोग तो सेलाटॉप में रुकूंगा और लोकेशन भी बहुत अच्छा है और बड़ा ड्राइव कर रहा है। यो यो बेबी 100% কিন্তু মোদী গভর্নমেন্টের আন্ডারে আছে। और ये जो सेला पास है ये अरुणाचल का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में ही है और इसका एल्टीट्यूड है 4170 मीटर, मतलब लगभग 4 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर ये सेलाटॉप है। और सेला पास का रोड का सिचुएशन बहुत खराब होता है विंटर सीजन में, बहुत बर्फ गिरता है, इसलिए सेला टनल बन गया अभी और तवांग के लिए बहुत टाइम बच जाता है इस टनल के लिए। और नेशनल हाईवे 13 में हम लोग ट्रेवल कर रहा हूँ। We are at mountain range, Himalayan range। और दोस्तों मैं ये जो बात बोल रहा हूँ सेलाटॉप, सेला टनल, सेला लेक, आप लोग जानता है ये सेला कौन है? एक लड़की के नाम पे ये लोकेशन का नाम हुआ है, सेला पास, सेला टनल। आप लोग जानते हैं वो लड़की कौन है और किसके लिए उसका नाम में ही ये हाई माउंटेन रेंज का नाम रख लिया? सेला ये मोनपा ट्राइब का लड़की थी, वो सेला जो परमवीर चक्र विजयी जसवंत सिंह का गर्लफ्रेंड था उस टाइम पे। और सेला और उसका जो बहन था नूरा, वो लोग खाना साना दे के जसवंत सिंह को बहुत हेल्प किया था और लास्ट में सबको मार दिया था चाइनीज आर्मी ने। वो लोग 72 आवर्स चाइनीज आर्मी को डिफेंड किया था सेला पास में। ये जो टनल लेक पास का नाम है उसका सेक्रीफाइस में ये नाम रख लिया है। अगर सेला, नूरा और जसवंत सिंह यहाँ पे ड्यूटी का पोजीशन में नहीं होता और वो देश के लिए जान नहीं देता तो शायद ये सब कुछ लैंड चाइना का पास ही चला जाता। उस टाइम पे इंडियन आर्मी का इतना ज़्यादा वेहिकल नहीं था, इंडियन आर्मी में इतना आदमी नहीं था। और इंटरेस्टिंग बात ये था कि बोमडिला से बुमला पास तक कोई रास्ता भी नहीं था, ऐसे ही इंडियन आर्मी ने वार किया था। और बाद में मरने का बाद वो इंडियन आर्मी ने जसवंत सिंह को कोर्ट मार्शल भी किया था, लेकिन जाते जाते समय में चाइनीज आर्मी ने बोल के गया था ये सिर्फ 4 आदमी ने सेला पास में उस लोगों को, चाइनीज आर्मी को 72 आवर्स अकेले ही डिफेंड किया था। और उसका जो अटैक का जो मतलब गेम था वो बहुत डिफरेंट था। अकेले ही वो चाइनीज आर्मी को 72 आवर्स डिफेंड किया था। उसके बाद इंडियन आर्मी उसका बंकर में आया, 4 इंडियन आर्मी और नूरा और सेला का डेड बॉडी वहाँ में ही पड़ा था। उसके बाद जसवंत सिंह को परमवीर चक्र दिया था और सेला के नाम पे सेला पास रख लिया था, क्योंकि सेला इंडियन आर्मी का नहीं था, उसका लोकल था, मोनपा ट्राइब। सेला पास क्रॉस करने का बाद ही ये जसवंत सिंह का वार मेमोरियल आ जाता है। अभी तो हम लोग नहीं घुसूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना, पूरा इंडियन आर्मी का वो जो वार मेमोरियल में जो ब्रीफिंग होता है आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। अभी मैंने जो बात बोला आप लोगों को, ये आप लोग विकिपीडिया में ही मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके देख भी सकते हो यहाँ से आने का पहले। सेला पास से ऊपर एक पास है इंडिया चाइना बॉर्डर में, वो है बुमला पास। और वहाँ पे ना सूबेदार जोगेंद्र सिंह और उसका जो 6 रेजिमेंट का जो 16 आर्मी था, वो लोग बुमडिला से 160 किलोमीटर ट्रेकिंग करके बुमला पास में जाकर चाइनीज आर्मी के साथ लड़ाई किया था। उसका साथ कोई गाड़ी मटर कुछ भी नहीं था और वो लोग भी चाइनीज आर्मी को बहुत टाइम डिफेंड किया था और उसका बाद वहाँ पे ही उस लोगों को वीर गति का प्राप्त हो गया था। चलिए हाँ। और देखो कितना क्लाउड आ रहा है। सेला यही है वो सेलाटॉप और शायद 5 किलोमीटर होगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पे पूरा फ्रॉगी हो जाएगा। और सेलाटॉप
12 बजे के बाद क्रॉस करना बहुत रिस्की होता है। अभी तो आइस नहीं है, अभी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से यहाँ पे स्नोफॉल बहुत कम हो गया है और टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुका और नज़ारा देखा और उसके बाद हम फिर से सेलातोप के लिए निकल रहा हूँ। चला जाता हूँ किसी की दिल में। ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचने ही वाला हूँ, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है। और हम लोग पहुंच गया हूँ। वेलकम टू तवांग गेट। सेलातोप पहुंच गया हूँ। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। व्यू और ये है सेला लेक, पहुंच गया हूँ 4170 मीटर ऑल्टीट्यूड में। ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि हवा भी बहुत तेज है और ठंडा भी बहुत है। जल्दी जल्दी नीचे जाना पड़ेगा। और हम लोग सुबह ही रामा कैंप से DL होमस्टे से निकला था और ब्रेकफास्ट भी किया मैगी बना के। अभी तो दोपहर हो गया, इसलिए हम लोग सोच रहा हूँ यहाँ पे खाना पकाऊंगा, लेकिन हवा बहुत तेज है इसलिए अच्छा जगह ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद खाना पीना खा के उसके बाद हम लोग फिर से चला जाऊंगा। रास्ता खाली है साइकिल। और सेलातोप क्रॉस करके ही हम लोग थोड़ा नीचे आकर एक पोजीशन ढूंढ लिया खाना बनाने के लिए और उसका बाद हम लोग पीछे आगे चलूंगा। आज तो तवांग तो पहुंचने ही वाला हूँ। आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, तभी मेरा चैनल में कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा। थैंक यू दोस्तों। हम लोग अभी अभी क्रॉस करके आया हूँ सेलातोप। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज हवा था, इसलिए नहीं रुका ज़्यादा टाइम। अच्छा लोकेशन में आ गया और थोड़ा नीचे आके हम लोग अच्छे जगह में रुका और अभी हम लोग पकाने वाला हो हम लोगों का खाना। और ये बड़ा ने जगह एडजस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा हवा है। सिलेंडर तो नहीं जलेगा, इसलिए एक नेचुरल कवर देख के वो सिलेंडर प्लेस किया है। ये देखो एक याक आ गया हम लोगों का सामने। एक बच्चा भी है और एक दूर से शायद वो यंग एज का है, वो दूर से हम लोगों को देख रहा है, वो शायद डर रहा है। तो ऊपर में बहुत ठंडा था ना, इसलिए हम लोग दाल बनाकर नीचे आ गया। तो क्योंकि ऊपर में पानी भी बहुत ज़्यादा था और ठंडा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए नीचे आ गया और एक अच्छा सा लोकेशन लेके हम लोग रुक गया हूँ। यहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं है, मतलब नहीं है लगभग, लेकिन पास में ही एक बड़ा सा वाटरफॉल जैसा दिखने वाला एक झरना है। और हम लोग बर्तन चर्तन चावल टावल वहाँ पे ही साफ कर लूँगा। पानी तो बहुत ठंडा है यहाँ पे, लेकिन बड़ा बहुत डेडिकेटेड कुकर है, मतलब कुकारू है, मतलब खाना बनाने वाला जो भी है, इसलिए वो ही मतलब चावल टावल धो रहा है पानी में। और शायद मेरे को बर्तन धोना पड़ेगा इस ठंडा पानी से। जो भी हो अच्छा लगेगा। ये दाल हो गया हम लोगों का। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा चावल पकाने के लिए, लगभग खाना हो ही गया। हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाऊंगा। सुबह से हम लोग भात नहीं खाया हो, हम लोग तो भोतुआ है ना, भात खाना ही पड़ता है। सुबह मैगी खाया, आप लोगों ने देखा पहले का ब्लॉग में। हम लोग खाना पीना अभी करने वाला हूँ। मौसम लोकेशन में हम लोग रुका हुआ हूँ।
और अभी दोपहर हो गया, हम लोग खाना पका रहा हूँ और खाना पकने के बाद खाकर हम लोग आगे जाऊंगा। और इस लोकेशन में ही ना 1962 में चाइनीज सोल्जर यहाँ पे आकर ये सेला पास में एक वार किया था। ये जगह पूरा चाइनीज सोल्जर का ऑक्युपाइड था। चाइनीज दोस्त में ही आ गया था शायद। इतना ऊंचा पहाड़ कैसे सर्वाइव करेगा, इसलिए शायद चला गया। उस टाइम पे इंडियन आर्मी में इतना आर्मी नहीं था। और यहाँ पे एक नदी का पास ही हम लोग कैंप मतलब खाना बना रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ। 13,000 फीट अबव सी लेवल में हम लोगों का खुद का खाना रेडी हो गया और हम चारों बात करते करते बैठ गया खाना खाने के लिए। खाना पीना खा लिया और उसके बाद हम लोग अभी टाउन के लिए निकल रहा हूँ। ज़्यादा नहीं मौका बंदे को ठंडा ले। ये जो अभी लेफ्ट साइड में जो लोकेशन आएगा वही है जसवंत सिंह वार मेमोरियल। यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्ट्री छुपा हुआ है। हिस्ट्री मतलब सेक्रीफाइस, लव, पेट्रियटिज्म सब कुछ यहाँ पे है। और वो ना लार्जर देन सिनेमा है। किताब में नहीं मिलेगा ये सब। हम लोगों का टाइम में तो क्लास 5 में ही वो सोशल साइंस में बाबर ने एंट्री किया था और क्लास 10 तक औरंगजेब भी नहीं खत्म हुआ था। ऐसा था मतलब। हम लोग अभी 1962 का वार जोन से निकल रहा हूँ तावांग के लिए। उस टाइम पे चाइनीज आर्मी वहां तक आ गया था और भी गया था, मतलब तेजपुर तक गया था। लेकिन बारिश में नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन बहुत अलग होता है। वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए शायद चला गया। नहीं तो इस जगह का सिचुएशन अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्षय सिंह जैसा ही होता। चाइना ऑक्युपाइड अरुणाचल एरिया। लाग हम लोगों का अच्छा है, नेचर भी। यहाँ से जिमीथांग 110 किलोमीटर है। जिमीथांग ही वो लोकेशन है जहाँ से चाइनीज आर्मी इंडिया में घुसा था। एक दिन तो जाना पड़ेगा जिमीथांग। अभी हम लोग पहुँच गया हूँ जुंग। और यहाँ पे आप लोगों को शायद मालूम है, यहाँ पे एक बहुत जायंट वाटरफॉल है। और आज पहली बार मैंने ये लोकेशन में आने वाला हूँ, मैंने जाने वाला हूँ। वो दूर से देखो जुंग वाटरफॉल। दोस्तों हम लोग नौगांव से तावांग तक आ रहा था और हम लोग अभी जुंग पहुंचा हूँ। सामने बहुत बड़ा जायंट वाटरफॉल है, वो है जांग वाटरफॉल। अभी हम लोग सेला टॉप क्रॉस करके 60 किलोमीटर आने का बाद ये जुंग वाटरफॉल मिला है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हो जांग वाटरफॉल्स। बहुत ऊंचा वाटरफॉल्स है ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे शूटिंग हुआ था कोयला मूवी का। शाहरुख खान ने एक्टिंग किया था। तन्हाई तन्हाई तन्हाई। और यहाँ से भी तावांग 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये बहुत जायंट वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल है बहुत ऊंचे से आ रहा है। थोड़ा मतलब ट्रैकिंग है, नीचे आना पड़ता है। आ रहा हूँ।
अभी तो नीचे आराम से जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ऊपर आऊंगा तब फटेगा। ये है चुंग वाटरफॉल्स। और जुंग वाटरफॉल तो पॉपुलर नाम है लेकिन उसका जो लोकल नाम है वो है नुरांगनांग फॉल्स। बहुत अच्छा नाम है ना, नुरांगनांग। और ये लोकेशन 12,000 फीट, लगभग 3,658 मीटर अबव सी लेवल है। और 1996 में एक बॉलीवुड मूवी यहाँ पे शूट हुआ था, उसका नाम था जुंग। तो फिल्म का नाम से ही ये वाटरफॉल का नाम रख लिया। उसके बाद 1997 में पहला मूवी का भी शूटिंग हुआ था, लेकिन जुंग पहले शूटिंग हुआ था ना, इसलिए उसका वाटरफॉल का नाम जुंग वाटरफॉल रख लिया। और सामने जो नदी है इसका नाम है तवांग चो, और ये इसका पानी जा रहा है भूटान तक। और भूटान में इसका पॉपुलर नाम है मानस रिवर। अब तो मानस नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वहाँ से ही ये रिवर आ रहा है फ्लो होके। और ये देखो पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है। यहाँ पे धूप निकलेगा तो यहाँ पे रेनबो दिखाई पड़ेगा शायद। और देखो कितना सुंदर है यहाँ का ये नज़ारा। और शायद किस्मत अच्छा है इसलिए धूप निकल के आया और पूरा वाटरफॉल्स में ही पड़ा। और देखो दो रेनबो यहाँ पे निकल आया है। ऐसा नज़ारा लाइफ में देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। और फर्स्ट टाइम विजिट है जुंग वाटरफॉल्स में मेरा। थैंक्स टू बाबा ये सब दिखाने के लिए। और आप लोग भी जब तवांग आएगा ना तब ये वाटरफॉल ज़रूर देख के जाना। ऐसा वाटरफॉल बहुत कम है शायद नॉर्थ ईस्ट में। एक है मेघालय में नौकालिकाय, वो उसका हाइट भी बहुत ऊंचा है। और एक है वे शाओडंग, वो भी बहुत यूनिक वाटरफॉल है, वो दोनों मेघालय में ही है। अरुणाचल में ये शायद बहुत बड़ा है। और आप लोग देख रहा है ये गोल्डन आवर का टाइम है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अंधेरा आ जाएगा। और हम लोग यही सोच के जुंग वाटरफॉल से जल्दी जल्दी निकल के आ गया, क्योंकि तवांग तक अभी भी बहुत दूर है और रास्ता ऑलमोस्ट अननोन है हम लोगों के लिए। आप लोग तो जानता ही है अरुणाचल में नॉर्थ इंडिया से 1 घंटा पहले सनराइज होता है और 1 घंटा पहले ही सनसेट हो जाता है। अरुणाचल का मीनिंग ही है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक भूपेन हजारिका का पॉपुलर गाना भी है, अहोम अमर रूपोही गुनो रुनाई हे। वो गाना जब लिखा था ना तब अरुणाचल असम में ही था, उसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। बाद में 20 फरवरी 1987 में ये लैंड असम से अलग होकर अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था। अभी हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि और 40 किलोमीटर है। पहाड़ में तो 40 किलोमीटर बहुत टाइम लगता है, शायद तो रात हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को होटल ढूंढना है। अभी तो बुक कर दिया लेकिन लोकेशन ढूंढना है। और देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ का सनसेट बहुत सुंदर है। यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए शायद इतना सुंदर नज़ारा आ रहा है। येलो स्टोन भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और तवांग पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। कल निकला था सुबह सुबह नौगांव से और आज शाम हो गया। बीच में रामा कैंप में रुका था हम लोग और तवांग अभी पहुँचने ही वाला हूँ। जो तवांग मोनपा ट्राइब का घर है, यहाँ पे सब मोनपा ट्राइब ही मिलता है। आप लोगों का मालूम है अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब यहाँ पे मिलता है एंड लॉट्स ऑफ सब ट्राइब्स यहाँ पे है। और सब लोगों का यूनिक कस्टम्स है, ट्रेडिशन है एंड लैंग्वेज है। ये 26 ट्राइब का अंदर ही एक ट्राइब है मोनपा ट्राइब। ये जो मोनपा ट्राइब है वो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और तवांग में मिलता है। उन लोगों ने तिब्बतियन बुद्धिज्म फॉलो करता है। और तवांग में ना तवांग मोनेस्ट्री है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और ये मोनेस्ट्री भी वो मोनपा ट्राइब लोगों ने ही संभालता है। और तवांग का जो मेन गेट है अभी क्रॉस कर रहा हूँ। ऐसा बहुत गेट है, सेलापास में भी वेलकम टू तवांग गेट है। सेलापास से ही तवांग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। और ये तवांग लगभग 10,000 फीट सी लेवल से ऊंचा है, अप्रोक्सीमेटली 3048 मीटर्स अबव सी लेवल। तवांग पहुंचने वाला हूँ, 10 किलोमीटर है और शाम हो गया। अभी 4:30 हुआ है। नज़ारा बहुत अच्छा है। तवांग सेलापास से लगभग 3000 फीट नीचे है और तवांग से ऊपर और एक पास है, वो है बुमला पास। वहाँ तक जाने के लिए तवांग का डीसी ऑफिस में पास निकलना पड़ता है। अगर आपका पास लोकल गाइड और लोकल गाड़ी नहीं है तो
आपको बुमला पास जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। इस रास्ते से ही आर्मी लोग ने आप लोगों को फिर से रिटर्न कर देगा तवांग के लिए। और आप लोगों ने देखा पूरा रात हो गया अभी रास्ते में ही, और ज़्यादा दूर नहीं है होटल के लिए। अभी हम लोग होटल ढूंढ रहा हूँ, मतलब होटल का लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही हम लोग होटल पहुँचने ही वाला हूँ। और ठंडा यहाँ पे बहुत है। जब तक यहाँ पे धूप था इतना ठंडा नहीं था, लेकिन जब धूप चला गया बहुत ठंडा आ गया है। और पूरा अंधार अंधार हो गया क्योंकि रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं है, और इसलिए पूरा अंधार है और सिर्फ हेडलाइट का पुहर में ही सब दिखाई दे रहा है। तो हम लोग होटल पहुंच गया। मॉर्निंग, सुबह हो गया और तवांग में सनराइज नॉर्थ इंडिया से थोड़ा मतलब जल्दी होता है। और अभी उठ के फिर से सो के मैं टेरेस में आया हूँ, वहाँ से आप लोगों का तवांग का व्यू दिखाऊंगा। कितना सुंदर पहाड़ है ये, और टेम्परेचर 2 डिग्री है। और ये तवांग मोनेस्ट्री है ऊपर में, एशिया's लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ये। अभी सुबह होटल से निकलकर हम लोग जा रहा हूँ मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री। वो है एशिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, और तवांग बहुत सुंदर है। सुबह 1 डिग्री था, अभी थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। कुकुरा बहुत डाঙৰ फाइल्स আছে। तवांग में ऐसा खूबसूरत गेट बहुत देखने मिलेगा, क्योंकि तवांग में मोनपा ट्राइब ही लोग यहाँ पे रहता है, और मोनपा ट्राइब बुद्धिज्म फॉलो करता है। और बुद्धिज्म में शायद इस टाइप का गेट में कुछ महत्ता है। और तवांग एक मेजर होली साइट है तिब्बतियन बुद्धिस्ट लोगों का, क्योंकि ये 6 दलाई लामा का बर्थ प्लेस है। जब 14 दलाई लामा को तिब्बत से मतलब भाग दिया था चाइनीज आर्मी ने, तब 14 दलाई लामा ने तिब्बत क्रॉस करके तवांग पहुंचा था 30 मार्च 1959 में। और वो कुछ दिन तवांग मोनेस्ट्री में ही रुका था, और बाद में वो तेजपुर आया था, असम का तेजपुर। 18 अप्रैल में वो तेजपुर पहुंच गया था। और अभी हम लोग वो ही मोनेस्ट्री में पहुंच गया हूँ, इट्स तवांग मोनेस्ट्री। और कितना चालिया नजारा है यहाँ पे, धूप निकल के आया है। और तवांग का ना हर साइड में ही पहाड़ का बीच में ही तवांग है। और ये तवांग मोनेस्ट्री 1680 में मेरेक लामा लोड्री ग्याम्स्तु ने बनाया था। लगभग 345 इयर्स ओल्ड ये तवांग मोनेस्ट्री। इतना हिस्टोरिकल प्लेस में आने का सुकून ही कुछ अलग होता है। तवांग में पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए तवांग का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर लगता है। और ये तवांग मोनेस्ट्री तवांगछू विलेज में है, और यहाँ से ना चाइनीज एंड भूटान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। कितना सुंदर मतलब एनवायरनमेंट है मोनेस्ट्री का अंदर में। और हम 4 पैदल आ रहा हूँ, गाड़ी बाहर में ही पार्किंग कर दिया। और ये मोनेस्ट्री का अंदर ही हम लोग चल रहा हूँ अभी। और ये देखो कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पे क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तिब्बत नहीं जानता हूँ। और घर भी बहुत सुंदर है, रोनी भी वहाँ से आ रहा है। और ये मोनेस्ट्री में मैं आज पहली बार आया हूँ। तवांग में मेरा दूसरा टाइम है, लेकिन ये मोनेस्ट्री में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। लास्ट टाइम स्किप कर दिया हम लोगों ने। हम लोग आकर मेन गेट में पहुँच गया हो। कितना खूबसूरत आर्ट है, एक मोंग का फोटो है, और यहाँ पे नेचर का फोटो है, कितना अच्छा है। और आप लोगों को मालूम है यहाँ से मतलब तवांग मोनेस्ट्री से तिब्बत और चाइना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तिब्बत लगभग 35 किलोमीटर है,
50-60 किलोमीटर अंदर में ही आ जाता है। और वंस अपॉन ए टाइम 1962 ये तावांग पूरा चाइनीज आर्मी ने ऑक्युपाई कर लिया था। हम लोगों को बोला था वो सेलाबास में कितना बड़ा जंग हुआ था, जसवंत सिंह, ये सब के लिए ही आज तावांग मोनेस्ट्री में हूँ, नहीं तो आज तावांग चाइना का पास ही होता और हम लोगों को पासपोर्ट लेके तावांग आना पड़ता। आप लोगों ने देखा बोरा ने प्रे कर रहा है अभी, और एक बात देखा बुद्धा जी का स्टेचू कितना बड़ा है और कितना सुंदर है, और पिन ड्रॉप साइलेंट भी है वहाँ पे। नीचे दलाई लामा का भी एक फोटो है, क्योंकि दलाई लामा धर्मगुरु है बुद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, और इसलिए बुद्ध धर्म एक पार्ट है हिंदू धर्म का। बुद्ध धर्म का शुरुआत इंडिया में ही हुआ था अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स पहले। और अभी देखो कितना सुंदर आर्ट है यहाँ पे। ये सब बुद्धिस्ट रिलीजन का भगवान है। मैं सब लोग देव देवी का नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये आर्ट आज पहली बार देखा हूँ। और कितना सुंदर है, कितना पुराना है ये मोनेस्ट्री, लेकिन आर्ट देखो अभी भी एकदम नया जैसा ही लग रहा है। कुछ देर हम लोग तवांग मोनेस्ट्री का अंदर रहने का बाद हम लोग निकल के आ गया, और निकल के ही सामने देखा एक लासा ब्रीड का कुत्ता सो रहा है, और ये लासा यहाँ का लोकल है। ये दोनों मोनपा ट्राइब का आदमी है। इस लोगों का हेयर स्टाइल से ही पता चल जाता है ये मोनपा है। हम लोग अभी निकल रहा हूँ मोनेस्ट्री से, बहुत टाइम बिता दिया। जब भी वो लामा लोगों का छोटा छोटा बच्चा देखता हो मोनेस्ट्री का बाहर, तब वो लोग दौड़ दौड़ के ही चलता है, पैदल नहीं चलता है, सिर्फ दौड़ता है। और सिनेमा में भी वो ऐसे ही दिखाता है, वो दौड़ता ही रहता है। और 1 घंटा लगभग मोनेस्ट्री के अंदर बिताने का बाद हम लोग निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा मेमोरी था फर्स्ट टाइम तवांग मोनेस्ट्री में। अभी हम लोग जा रहा हूँ जायंट बुद्धा स्टेचू के लिए। उसके बाद हम लोग तवांग से बैक होंगे, क्योंकि तवांग में बहुत ठंडा है। हम लोग अभी निकल रहा हूँ जायंट बुद्धा स्टेचू के लिए। मोनेस्ट्री से हम लोग निकल रहा हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग अभी तवांग में हूँ, और तवांग मोनेस्ट्री देख के हम लोग अभी आ रहा हूँ जायंट बुद्धा स्टेचू देखने के लिए। ये बहुत बड़ा बुद्ध देव का एक स्टेचू है तवांग में ही। और देखो सुबह सुबह को नजारा कितना सुंदर है। हम लोगों का घर से निकलने का बाद 2 दिन हो गया, और इसलिए हम लोग आज जायंट बुद्धा स्टेचू देखने के बाद रिटर्न होऊंगा असम के लिए, मतलब घर के लिए। बीच में रमा कैंप में रुकूंगा, वहाँ पे एक वैली है वो भी देखूंगा। और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह लगभग 9 बजने वाला है, और ज्यादा दूर नहीं है बुद्धा स्टेचू के लिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठ के हम लोग मोनेस्ट्री के लिए निकल आया था, और कुछ भी खाना नहीं मिला था यहाँ पे। अभी तो दुकान खुल गया है, इसलिए होटल में खाना मिल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है मोनेस्ट्री से जायंट बुद्धा स्टेचू तक, लगभग 6-7 किलोमीटर है। लेकिन पहाड़ में ज्यादा स्पीड नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है पहुंचने के लिए। अभी पहुंच गया हूँ हमारा लोकेशन, और गाड़ी से उतर के ही एक बढ़िया सा नजारा मिला। देखो कितना फूल है, और यहाँ से तवांग बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग पहुंच गया है जायंट बुद्धा स्टेचू में, और ये सच में जायंट है। ये 30 फुट का स्टेचू 2025 में बनाया था, और ये एक नया लैंडमार्क हो गया तवांग का। द बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ गौतम। ये स्टेचू एक लोटस पोजीशन में है, और पेंटिंग और मुरल से डेकोरेट कर रहा है।
सच में इसका आर्किटेक्ट, पेंटिंग, डेकोरेशन बहुत मतलब खूबसूरत है। ज्यादा पुराना नहीं है, फिर भी बहुत एंशियंट जैसा देख रहा है। कितना बड़ा स्टेचू है ये, बहुत बड़ा स्टेचू है और ठंडा भी बहुत है, नज़ारा भी बहुत चालिया है। बीच में ही इंडियन आर्मी का एक कैंप भी है, लोग देख सकते हो ये आर्मी कैंप। येलो कलर का ये बेल और वॉल में लगा हुआ ये स्ट्रक्चर ने स्टेचू को एक अलग ही माइलेज दिया है। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम रुका, अभी 1 घंटा हो गया शायद लगभग। अभी हम लोगों का रिटर्न होने का टाइम हो गया, लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कल रात यहाँ पे इतना ठंडा था ना, मेरा तो बुखार ही हो गया। लेकिन एक सपना ही रह गया, वो है यहाँ का बर्फ। अभी तक 1 बार या मुश्किल से 2 बार यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है अभी तक, इसलिए पूरा सिटी में बर्फ नहीं जमा हुआ है। सेलालक में भी इतना बर्फ नहीं था, फ्रोजन ही नहीं हुआ है। शायद ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये वेदर का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। फिर से एक बार आने पड़ेगा तवांग बर्फ देखने के लिए। और ये है तवांगचू वैली, और दूर में वो जो बड़ा बिल्डिंग जैसा दिख रहा है वही है तवांग मोनेस्ट्री। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो मोनेस्ट्री का अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग फिर से देख सकते हो जो भी नहीं देखा है अभी तक। और जाते जाते एक बात, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये आप लोगों का पूरा फ्री है, लेकिन मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए बहुत इंस्पिरेशन आता है। बुद्धदेव का स्टेचू है। ये है बुद्धा पार्क। हम लोग अभी जायंट बुद्धा स्टेचू से निकल रहा हूँ और यहाँ से हम लोग Continue for 1.5 kilometers. आप लोग देख रहे हैं जीत कैसब ट्रेवल ब्लॉगिंग, और हम लोग अभी तवांग का जायंट बुद्धा स्टेचू देख के निकल रहा हूँ तवांग से घर तक। आप लोगों ने अभी तक जांग वाटरफॉल्स, तवांग मोनेस्ट्री, जायंट बुद्धा स्टेचू अभी तक नहीं देखा तो मेरा पिछली ब्लॉग देखो, वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया हूँ। पूरा 3 दिन का सफर रहा हम लोगों का। ये रोड ट्रिप में बहुत नया एक्सपीरियंस मिला। अभी आप लोग चलो हम लोगों के साथ रामा कैंप। हम लोग अभी सेला पास क्रॉस करना पड़ेगा। सेला पास बहुत हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है, लेकिन हम लोग पूरा सेला पास नहीं जाऊंगा। फर्स्ट टाइम मैं सेला टनल का अंदर में जाऊंगा। और अभी हम दर्जी लमू दीदी को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि तावांग से जाकर हम लोग टीएल होमस्टे में ही रुकूंगा। Continue on National Highway 13 for 36 kilometers. दीदी को पहले बोलना पड़ेगा। और अरुणाचल में अभी बारिश का सीजन नहीं है, कुछ दिनों के बाद स्नोफॉल होगा। बारिश का सीजन में ना अरुणाचल का रास्ता बहुत डेंजर होता है। और ये वार जोन पहुंच गया जसवंत सिंह का, जहाँ पे इंडिया चाइना का जंग लड़ा था। अभी हम लोग तवांग डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी सेला पास पहुंचने वाला हूँ। तवांग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग एंट्री करूंगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग ये नेशनल हाईवे 13 पे जा रहा हूँ। और सेला पास बहुत हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, आप लोगों को तो बोला ही था। हम लोग अभी 4200 मीटर अबव सी लेवल में ड्राइव कर रहा हूँ। और मजे के बात ये है कि हम लोग आज पहली बार सेला टनल में घुसूंगा। और ये सेला टनल सेला पास से 400 मीटर नीचे है, मतलब अंदर है। ये टनल का काम शुरू हुआ था 15 अक्टूबर 2020 में, और ये सेला टनल ओपन हुआ था 9 मार्च 2024 में। इतना जल्दी काम हो गया, इसका मानना पड़ेगा। हम लोग अभी जसवंत सिंह वार मेमोरियल क्रॉस करके आया है। और आप लोग तो जानते ही है सेला पास का नाम ये
सेला और नूरा का सेक्रीफाइस में ही रखा है और सेला टनल का नाम भी इसलिए ही रखा है, इस बिकॉज ऑफ सेला सेक्रीफाइस। सेला टनल 3000 मीटर्स लंबा है और ये गुवाहाटी और टावांग के अंदर ऑल वेदर कंडीशन में सर्विस दे सकते हैं। और ये सेला टनल 13,000 फीट में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लैंड टनल है। और अभी हम लोग घुस गया टनल में और अभी हम लोग का 400 मीटर ऊपर सेला पास है। ये टनल स्पेशली आर्मी के लिए बनाया है। ये टनल में ट्रूप वेपन्स और ये मशीनरी से वो इंडिया चाइना बॉर्डर में जल्दी ले जा सकते हो आप लोग। और ये टनल के लिए दिरांग और टावांग का डिस्टेंस 10 किलोमीटर रिड्यूस हुआ है। और आप लोग तो जानता ही है, ये इनोग्रेट किया था पीएम मोदी ने 9 मार्च 2024 में। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टली ब्रो का प्रोजेक्ट है। ये जो पहला पार्ट में हम लोग जा रहा हूँ, ये टनल नंबर 1 है और इसका लंबाई है 980 मीटर। हम लोग अभी टनल नंबर 1 से अभी निकल रहा हूँ। ये आर्मी का जवान ने डांस वेंस किया अच्छा लगा, शायद पंजाब रेजिमेंट से है। ये जगह सेला पास से ज्यादा सुंदर दिख रहा है, शायद पहली बार है ना, इसलिए शायद मेरा ऐसा लग रहा है। और अभी हम लोग घुसने वाला हूँ टनल नंबर 2। ये टनल नंबर 1 से लगभग डबल है। इसका लंबाई है 1555 मीटर और ये दो टनल का डिस्टेंस है 1200 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। सच में अभी इंडिया का सिचुएशन 1962 जैसा नहीं है, स्पेशली आफ्टर 2014। अभी चाइनीज आर्मी ने वार शुरू करेगा तो इंडियन आर्मी भी पूरा रेडी है। टनल का अंदर ठंडा बहुत है, गाड़ी से हाथ निकल कर शूट करने का भी डर लग रहा है, इसलिए गाड़ी का अंदर से ही शूट कर रहा हूँ। इतना ठंडा है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग टनल से बाहर आ रहा हूँ और बाहर में देखो कितना सुंदर नजारा है। ये पहाड़ में तिब्बत फ्लैग का ब्यूटी कुछ अलग ही है। हम लोग अभी बादल में ड्राइव कर रहा हूँ, लगभग 13,000 फीट अबव सी लेवल। और यहाँ से मतलब सेला पास से रामा कैंप इतना दूर नहीं है, लगभग हम लोग 1-2 घंटे का अंदर ही पहुँच जाऊंगा। अगर टाइम मिलेगा तो सामने ही एक वैली है, चोक वैली, वो चोक वैली में जाऊंगा। 12,000 फीट का ऊपर पहाड़ का सिचुएशन बहुत अलग ही होता है, बहुत ताप होता है। यहाँ पे एक पेड़ भी नहीं है, यही डिफरेंस है शायद माउंटेन्स एंड हिल्स का। हिल्स में बहुत पेड़ होता है, माउंटेन में पेड़ नहीं होता है। हम लोग अभी थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गया है। थोड़ा नीचे जाने के बाद शायद ये क्लाउड क्लियर हो जाएगा। और अभी बहुत नीचे आ गया हूँ, पेड़ से भी आ गया और बादल भी ऊपर में ही रह गया। और ये देखो सनलाइट का नजारा कितना सुंदर है। हम लोग थोड़ी देर के बाद ही रामा कैंप पहुंच जाऊंगा। वहाँ पे हम लोग डीएल होम स्टे में रात स्टे करूंगा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलना। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अच्छा लगा तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना, एक तो हो सके तो शेयर भी कर देना, अब मेरा चैनल ग्रो अप होगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गया हूँ रामा कैंप और यहाँ पे एक वैली है, चोक वैली। हम लोग अभी शाम होने के लिए कुछ टाइम बाकी है, तो हम लोग वो वैली देखकर अभी आऊँगा। रामा कैंप पहुंच गया हूँ और डीएल होम स्टे भी पास में ही है। अभी फिर से वो शॉट ऐड कर दिया है। वो दूर में जो वैली दिखाई दे रहा है वही है चोक वैली। और अभी वो वैली में ही जा रहा हूँ डायरेक्ट तवांग से, क्योंकि सनसेट होने के लिए टाइम ज्यादा नहीं है।
और कल सुबह क्या होगा मालूम नहीं है, क्योंकि सोच रहा हूँ कल बहुत देर तक सोऊंगा। ये वैली रामा कैंप पे है और रामा कैंप से सेला पास ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 55 किलोमीटर। हम लोग तवांग से डायरेक्ट रामा कैंप तक आया हूँ, होमस्टे में भी नहीं घुसा। और ये वैली में एक रिवर गया है, वो रिवर का नाम है कामेंग रिवर। चोक वैली किस तरह गया इतना? हम लोग अभी कामेंग रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। आगे भी है और एक ब्रिज। भालुकपुंग से एकदम सेलापास तक ये नदी ही मिलता है हम लोगों को, और ये नदी असम में जाकर जियाभरली नदी में मार्च हुआ है। और ये रास्ता का सिचुएशन नदी ने कुछ खराब कर दिया है। पहाड़ी नदी है ना, बारिश का सीजन में नदी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। आज पहली बार आ रहा हूँ चोक वैली। आते जाते टाइम तवांग देखा ही रहता था, लेकिन जाने का टाइम नहीं हुआ था। इस बार थोड़ा टाइम लेके आया हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम मिल गया। वो टाइम को शाम चोक वैली में हम लोग एडजस्ट कर लेता हूँ। और चोक वैली ही हम लोगों का इस टाइम अरुणाचल का लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद कल सुबह ही हम लोग घर चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 5.5 दिन हो गया हम लोग घर से निकलने का। चोंग वैली एक्चुअली एक हिडन जेम है अरुणाचल का। यहाँ का सिंपलिसिटी इतना मतलब सिंपल है ना, कैसा सुंदर नजारा है यहाँ पे। आगे में गेस्ट हाउस भी मिलेगा, रेस्टोरेंट भी है, और अच्छा अच्छा नजारा नेचुरल लोकेशन मिलेगा। अभी मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, शायद नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा टाउन से अंदर में घुसा है ना। और एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप लोग जब चोक वैली आएगा ना, तब थोड़ा कैश हाथ में जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी इतना ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों ने कैश रामा कैंप से ही कैरी करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी सब होम स्टे, कैंपिंग ये सब का फैसिलिटीज है, रेस्टोरेंट। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे नहीं रुकूंगा, हम लोग रामा कैंप पे ही रुकूंगा, डीएल होमस्टे में, क्योंकि वो होमस्टे हम लोगों का फेवरेट है। चोक वैली का रास्ता? हाँ? चोक वैली आगे में कितना दूर? यहाँ से कितना ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ यहाँ से सीधा है। सीधा है ना? थैंक यू। बाय बाय। हम लोग धीरे धीरे नेचर का मजा ले लेके आगे चल रहा हूँ चोक वैली तक। सामने ही है अभी चोक वैली हम लोगों का। ए भाई लोग, हम लोग पहुंच गए हो चोक वैली। ये ब्रिज है सर। नहीं तो इसके लिए है ना ब्रिज। ये है चोक वैली का छोटा रास्ता। पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए रास्ता भी ज्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे जितना भी घर देख रहा है, यहाँ पे सब ही होम स्टे है, नया बना रहा है। शायद थोड़ी दिन के बाद यहाँ पे होम स्टे और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शांति वैली भी इतना पहले पॉपुलर नहीं था, लेकिन आजकल शांति वैली में बहुत टूरिस्ट आता है। ऐसा चोक वैली भी हो जाएगा शायद कुछ दिन के बाद।
चौक वैली में 1 घंटा बिताने का बाद हम लोग अभी रिटर्न होने वाला हूँ। अंधार भी हो रहा है। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ी दूर जाऊंगा रामा कैंप तक। वहाँ पे डीएल होमस्टे में हम आज रुकूंगा। आप लोगों को कैसा लगा चौक वैली, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताना। हो सके तो एक बार आ भी जाना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और हो सके तो 1-2 शेयर भी कर देना। कंजूसामी मत करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज कैराही और प्रेशर कुकर टावांग में ही छोड़ के आ गया। अभी कल सुबह वो होटल का ओनर वो भेज देगा हम लोग का ये होमस्टे के लिए, तो कल मिलेगा। हम आज डीएल होमस्टे से ही वो कुकर कैराही वो खाना बनाने के लिए ले लूँगा। दीदी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन दे देगा, मालूम है। और कल बहुत फूटी गया, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिला, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों का रिटर्न जर्नी दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट बोमदिला। सुबह 11 बजे से हम लोग ड्राइव कर रहा था, रुक के आया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और अभी दोपहर होने में थोड़ा टाइम है। हम लोग ब्रेकफास्ट रामा कैंप में ही किया, डीएल होमस्टे में। अभी थोड़ी देर के बाद लंच करने वाला हूँ, और वेदर भी आज पूरा क्लीन है। अभी हम लोग पहुँच गया बोमदिला बाईपास। अभी तेजपुर के लिए हम लोग लेफ्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से बोमदिला टाउन पहुँच जाऊंगा। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जीत कश्यप ट्रेवल ब्लॉग, और हम लोग अभी रिटर्न हो रहा हूँ तवांग से नौगांव तक, मतलब घर तक। आने का जर्नी तवांग का, तवांग मोनेस्ट्री, जैन बुद्धा स्टैचू, जांग वाटरफॉल्स, ये सब कुछ पिछले ब्लॉग में है मेरा। और रामा कैंप में एक वैली दिखाया था, चौक वैली, ये पूरा लास्ट ब्लॉग में है। गुवाहाटी से तवांग आने तक 1 दिन तो रुकना ही पड़ता है। आप लोग रामा कैंप में रुको और ये चौक वैली विजिट करो, बहुत अच्छा नजारा मिलता है वहाँ पे। दोस्तों, हम लोग पहुँच गया एक रिवर साइड में, रूपा क्रॉस करके ही। और यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकूंगा, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम का खाना अभी पकाऊंगा यहाँ पे ही। टाइम भी हो रहा है, भूख भी लग रहा है बहुत। दोस्तों, ये रिवर का नाम है टेंगा रिवर। आने का टाइम में भी इस रिवर का पास में ही हम लोग खाना पकाया था, और जाने का टाइम में भी लास्ट खाना इस नदी का पार में ही हम लोग पकाऊंगा। नज़ारा बहुत अच्छा है। साउंड, नदी का जो साउंड है बहुत सुंदर है, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम के लिए हम लोग ये नदी का पार में खाना पकाऊंगा, मतलब पिकनिक होगा हम लोगों का, हम चारों का। कलापास से ही ये नदी मिल रहा था। पूरा खाना का जुगाड़ चल रहा है अभी के अभी। ये रिवर उधर चौक वैली में भी मिला था, ये रिवर, और यहाँ पे भी मिला टेंगा वैली में भी। टेंगा वैली तो इस रिवर का नाम में ही है, टेंगा रिवर, टेंगा वैली। ये पूरा असम तक यही नदी मिलेगा, टेंगा रिवर। और ये नदी असम में जाकर जियाभरली नदी में मर्ज हुआ है। हम लोगों का खाना अभी होने वाला है कुछ ही देर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखो, हम लोगों को खाना खाने के लिए मेहमान आया है, काला कुत्ता। और ये भी हम लोगों के साथ खाना खाएगा। अभी हम लोगों का खाना हो ही गया है ऑलमोस्ट, इसलिए कैम सैम पैक कर दिया। फैमिली में है इसलिए शॉट बहुत फास्ट जा रहा है। और अभी हम लोग खाना खाऊंगा। ये हम लोगों का लास्ट खाना है इस रोड ट्रिप का।
और खाना पीना हो जाने के बाद सब कुछ हम लोग पैक कर लिया और यहाँ से एक प्लांट में ले लिया घर के गार्डन के लिए। और सब कुछ पैक होने के बाद हम लोग अभी निकलने वाला हूँ सीधा घर नौगांव। अभी तो 3 यहाँ पे ही बस गया। घर पहुँचने पहुँचने शायद 10 बज जाएगा, रात 10। अभी दोस्तों हम लोग निकल रहा हूँ टेंगा वैली से और अभी शाम होने वाला है। लास्ट खाना हम लोग पका लिया, खा भी लिया, कुत्ता को भी खिलाया और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग निकल रहा हूँ। यहाँ से लगभग माउंटेन नहीं मिलेगा, हिल ही मिलेगा एकदम भालुकपुंग तक। उसके बाद रास्ता पूरा प्लेन है, प्लेन एरिया में है, रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। उस लोकेशन पहुँचते पहुँचते हम लोगों का रात भी हो जाएगा। नहीं तो माउंटेन में रात ड्राइव करना बहुत रिस्की होता है। थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग, मेरा ट्रेवल जर्नी, मेरा डेस्टिनेशन, शॉर्ट एडिटिंग, ये सब कुछ मिलकर कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और जाते जाते टाइम फिर से बोलूंगा नेक्स्ट आ रहा हूँ और एक नया डेस्टिनेशन लेके नया डेस्टिनेशन जाऊंगा। और दोस्तों प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय ट्रेवल ब्लॉग और प्लीज हो सके तो 1-2 शेयर मेरे लिए भी कर देना, क्योंकि ये सब तो फ्री है। लेकिन आप लोगों का एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब में नेक्स्ट ब्लॉग बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा।